mitosis, meiosis, haploid cell and diploid cell. So let's start. Let us see what is cell division. Consider this is a cell, again cell membrane. As always, cytoplasm in the center, there is a nucleus. Inside the nucleus, what is there? Chromatin network. Okay, this is a cell. Or else we can say this is a parent cell. Parent cell क्यों बोला मैंने इसको? Because it is going to divide now. Okay, so ये divide होने वाला है. Divide होने वाला है का मतलब है ये अभी इसके जैसे 2 equal cells बनाने वाला है. Okay, so this will undergo cell division होगा, इसका division होगा and similar to this egg cell. ये एक सेल बना and this one cell. These are called daughter cells. So one parent cell will produce 2 daughter cells. This is called cell division. Now cell division is of 2 types. Let us see 2 type के क्यों है cell division. Now take one example. I will give you one example. Look at this cell. I am drawing one cell, nucleus. और देखो मैंने nucleus में क्या लिखा है? I have written 2n. That means this cell is, what is this cell? Haploid or diploid? Diploid, right? So this is one cell, diploid cell. Okay, this is going to divide now. Can I say this is a parent cell? Yes. So I can write parent का diploid cell है ये. Okay. Now this cell will divide and ये सेल ने अपने ही जैसे 2 सेल्स बनाए हैं. अभी हमने देखा ये 2 सेल्स, अगर if this is a parent cell, these 2 cells are called as daughter cells, right? Daughter cells बनाए. What is the ploidy of parent cell and daughter cells? Ploidy means how many sets of chromosome. Here you can see 2 sets of chromosome. मतलब parent cell क्या है? Diploid है. तो daughter cells भी तुमको क्या दिख रहे हैं? Diploid. This means एक cell था parent cell जो क्या था? Diploid था. उसने अपने जैसे 2 daughter cells बनाए. But daughter cells कैसे हैं? वो भी कैसे हैं? Diploid. मतलब ऐसे नहीं हुआ कि 2n सेल था और उससे 2n बन गए. n and n, 2n से. It is not like this कि एक 2n सेल था और इसने एक n बनाया and because n plus n 2n no. One 2n cell, diploid cell, parent diploid cell undergoes cell division and makes 2 diploid daughter cells. बिल्कुल exactly इसके जैसे ही 2 cells इसने बनाए हैं. This type of division जिसमें exactly equal daughter cells जो है बिल्कुल parent जैसा ही होता है, this type of division is called as equational division. What is it called? Equational division. Equational division. क्यों इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि इक्वेशनली डिवाइड हुआ है. 2n से 2 2n बने हैं, राइट? इक्वेशनल डिवीजन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोसिस. सो एक टाइप का सेल डिवीजन हमने देखा. व्हाट वी हैव सीन? माइटोसिस. माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस में क्या होता है? वन पेरेंट सेल विच इज डिप्लॉइड विल प्रोड्यूस 2 daughter cells which are also diploid. मतलब डिवीजन क्या हुआ है? इक्वेशनल हुआ है. यहाँ पे हाफ डिवीजन नहीं हुआ, सेम 2 सेल्स बने हैं, इक्वेशनल डिवीजन. नाउ लेट अस टेक अगेन वन सेल. सी व्हाट आई हैव रिटन. 2n मीन्स ये क्या है? डिप्लॉइड सेल है. This is diploid cell.
एंड ये सेल अभी डिवाइड होने जा रहा है, बट दूसरे टाइप से डिवाइड होने वाला है. सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन वी आर गोइंग टू सी. सो ये डिवाइड होने वाला है. दैट इज व्हाई शैल आई कॉल दिस पेरेंट सेल? यस, बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक डॉटर सेल. सो पेरेंट सेल कैसा है? डिप्लॉयड है. नाउ इट इज गोइंग टू अंडरगो सेल डिवीजन, बट ऐसा सेल डिवीजन नहीं, इक्वेशनल डिवीजन नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन. लेट अस सी. ये जो पेरेंट सेल है डिप्लॉयड है, it undergoes cell division and see what it has made. It has made 4 cells. 4 cells बनाए हैं इसने, 2 cells नहीं. It has made 4 cells. And how are they 4 cells? What is the ploidy of 4 cells? What is the ploidy of all these cells? Haploid. So diploid parent cells sometimes undergo different सेल डिवीजन देन दिस माइटोसिस. दूसरे टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें पेरेंट सेल जो डिप्लॉयड है वो सेल डिवीजन से डॉटर सेल्स तो बनाए हैं, बट हाउ आर द डॉटर सेल्स? हाउ आर द डॉटर सेल्स? हैप्लॉयड. हाफ है ना, हैप्लॉयड. सो 2n से कितने n बने? 4n बने. सो दिस वाज इक्वेशनल डिवीजन. दिस वाज इक्वेशनल डिवीजन. 2n डिप्लॉयड सेल मेड 2 डिप्लॉयड सेल्स. ये 2n था पेरेंट सेल और डिप्लॉयड सेल ने कौन से सेल्स बनाए? हैप्लॉयड, हाफ. सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. व्हाट इट इज कॉल्ड? रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शन हुआ है, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. एंड अदर नेम फॉर रिडक्शनल डिवीजन is meiosis. So how many types of cell division are there? Cell divide होता है, but 2 types of cell division are there. Sometimes cell will undergo this type of division. What it is called? Equational division or mitosis, जिसमें 1 diploid parent cell will make 2 diploid daughter cells. And second type of division कौन सा है? Meiosis और reductional division, जिसमें parent cell जो diploid है will make 4 haploid cells. So what is the difference between meiosis and mitosis if I ask? So what is difference between mitosis and meiosis? You can easily tell now. Mitosis is called as equational division. Meiosis is called as reductional division. In mitosis, diploid parent cell will make 2 diploid daughter cells. In meiosis, diploid parent cell will make 4 daughter haploid cells, right? And many more differences are there. Those we will see now. Now, in our body, दोनों टाइप के सेल डिवीजन होते हैं. माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन एज वेल एज meiosis रिडक्शनल डिवीजन. बट लेट अस सी माइटोसिस कहाँ होता है एंड क्यों होता है, एंड meiosis कहाँ होता है, क्यों होता है. सो लेट अस फर्स्ट स्टडी माइटोसिस इन डिटेल. वेयर इट हैपन्स, माइटोसिस. Now take your example. For example, this is you when you were in class. Now you are in 10th class, right? Just give an exam of 10th class. When you were in 9th class, so you were like this. Okay, your height was this much. Okay, when you were in 9th or 8th class. Now after few days, अभी आज की डेट में आपकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है and your height is like this now. So आपके बॉडी में क्या हुआ है जिससे आपकी हाइट बढ़ गई? मतलब हम क्या बोलते हैं कि हाइट बढ़ गई है. क्यों बढ़ गई है? बिकॉज क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है, राइट? आपका क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है, इसीलिए हाइट भी बढ़ी है एंड वेट भी बढ़ा है. बट वी आर कंसिडरिंग एग्जाम्पल ऑफ हाइट. आपकी हाइट क्यों बढ़ी है बताओ? इतनी थी आपकी हाइट क्लास 8 में एंड क्लास 10 में इतनी अगर हाइट है तो वाई, व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग हाइट? ग्रोथ हुआ है आपका, राइट? एंड ग्रोथ क्यों हुआ है? क्योंकि आपके बॉडी के बहुत सारे सेल्स डिवाइड हुए हैं. एक सेल ने कितने सेल्स बनाए हैं? 2 सेल्स बनाए हैं. आपके बॉडी में बहुत सारे सेल्स इंक्रीज हुए हैं.
एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सेल नंबर क्या हुआ है, आपका हाइट बढ़ गया, राइट. सो इंक्रीज इन सेल नंबर, एक सेल था 2n, उसने 2 सेल्स बनाए. ऐसे आपके बॉडी के बहुत सारे सेल्स डिवाइड हुए हैं एंड माइटोसिस हुआ है, राइट. आपकी बॉडी में क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है. सो माइटोसिस हेल्प्स इन, टेल मी, माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ, राइट. इंक्रीजिंग हाइट, इंक्रीजिंग वेट. तो अगर आपकी हाइट बढ़ रही है मतलब आपके बॉडी में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है. मतलब कौन सा डिवीजन हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है. एक डिप्लॉइड सेल कितने सेल बना रहा है, 2 डिप्लॉइड सेल बना रहा है. व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट इज ग्रोथ. सो माइटोसिस का सबसे पहला सिग्निफिकेंस, मतलब माइटोसिस कहाँ हेल्प कर रहा है हमारे बॉडी में, कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस माइटोसिस का है ग्रोथ. इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ बॉडी. ठीक है. नाउ और एक जगह पे माइटोसिस होगा हमारे बॉडी में, कहाँ, लेट मी टेल यू. सी माई हैंड, लुक एट माई हैंड. अगर मेरे हैंड को यहाँ पे इंजुरी हुई है, इंजुरी हो गई है, खरोच हो गई है, राइट. खरोच आ गई, तो कुछ दिन बाद क्या वो खरोच इंजुरी वैसी ही रहेगी, नो, इट विल हील. पूरी जो स्किन यहाँ पे जो डैमेज हो गई थी बिकॉज ऑफ इंजुरी, पूरा स्किन वहाँ पे नया स्किन आ जाएगा. कैसे आ गया न्यू स्किन, बिकॉज वहाँ पे क्या हुआ है, सेल डिवीजन हुआ है. वहाँ के सेल्स ने इक्वेशनल डिवीजन किया है एंड मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ माइटोसिस माई इंजुरी गॉट हील्ड. तो माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन, यहाँ पे बहुत सारा सेल डिवीजन हो गया एंड मेरी इंजुरी हील हो गई. सो माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एज वेल एज व्हाट वी कैन से healing of wounds, of healing of injury, right. So significance of mitosis, mitosis helps in growth of your body. It will make you tall, okay. And secondly it will help healing of injury. जहाँ पे भी सेल्स इंजर हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, वहाँ के सेल्स रिप्लेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ माइटोसिस. तो माइटोसिस ऐसा पावर है सेल के पास जिससे एक सेल उसके जैसे 2 सेल्स बना सकता है, इक्वेशनल डिवीजन. गॉट इट, एवरीथिंग क्लियर अबाउट माइटोसिस. ओके, नाउ मूव ऑन टू मियोसिस. नाउ मियोसिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, वेर इट डज हैपन, कहाँ होता है हमारे बॉडी में. ये तो हमको पता चल गया कि पूरे बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करता है, इंजुरी हीलिंग में माइटोसिस हेल्प करता है, ठीक है. सो मियोसिस जो है, जो रिडक्शनल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन कहाँ होता होगा, हमारे कौन से बॉडी पार्ट में होता है, ये एक स्पेसिफिक पार्ट में होता है. ये जो माइटोसिस है इट विल हैपन थ्रू आउट अवर बॉडी, बट जहाँ पे इंजुरी है वहाँ होगा, या फिर थ्रू आउट अवर बॉडी इट विल हैपन, इट कैन हैपन. बट ये जो मियोसिस है इट हैपन्स ओनली इन गोनाड्स. मियोसिस जो है वो हमारे बॉडी में सिर्फ गोनाड्स में होगा, ये टाइप का सेल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन. नाउ व्हाट इज गोनाड्स, व्हाट आर गोनाड्स, यू पीपल ऑलरेडी नो. गोनाड्स मीन्स मेल्स में इट इज टेस्टिस एंड बताओ फीमेल में इट इज ओवरी, राइट, ओवरी. सो मियोसिस में क्या होगा, मेल का जो टेस्टिस का सेल है वो एक्चुअली 2n ही है, डिप्लॉइड ही है, बट इट विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल मेक 4 हैप्लॉइड सेल्स. और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम बोलेंगे स्पर्म्स और मेल गैमेट्स. नाउ यू कम टू नो मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे मेल गैमेट्स. मेल्स में टेस्टिस के सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉइड है, क्योंकि हमारे सारे बॉडी सेल्स डिप्लॉइड है. और वो जो डिप्लॉइड सेल है टेस्टिस का, इट विल अंडरगो विच डिवीजन, मियोसिस. यहाँ पे मियोसिस होने वाला है. एंड ये जो सेल है ये हाफ हैप्लॉइड सेल बनाएगा. जो स्पर्म्स है
मतलब मेल गैमेट्स. सिमिलर थिंग विल हैपन इन फीमेल ओवरी. फीमेल ओवरी में फीमेल के ओवरी के जो सेल्स है वो सारे सेल्स ऑब्वियसली 2n है, डिप्लॉयड है, बट दे विल ऑल्सो अंडरगो मियोसिस एंड दे विल ऑल्सो मेक 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. और ये सेल्स को हम बोलेंगे ओवम और एग, राइट, एग. सो sperm is male gamete and ovum or egg is female gamete. Female gamete. So tell me, अगर माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. ऐसा सेल डिवीजन होगा तो हमारा क्या होगा? ग्रोथ होगा या फिर इंजुरी हील होगी. बट ऐसा सेल डिवीजन हमारे बॉडी में कहाँ होता है? रिडक्शनल डिवीजन कहाँ होता है? एट 2 places. In males it happens in testes and in female it happens in ovary. Testes and ovary are called together called as gonads. Testes में what will testis cell do? Testis cell, diploid cell will make 4 haploid cells which are called as sperms or male gamete, and female में ovary cell will undergo meiosis and will make 4 haploid cells which are called ovum or egg, and they are also called as female gamete. So meiosis का significance, only one significance, helps in gamete formation. and कहाँ होता है? कौन से बॉडी पार्ट में होता है meiosis? हमारे gonads या फिर reproductive parts. I think everything is clear now about mitosis and meiosis. We will again see the difference between mitosis and meiosis.